अंडरस्टैंडिंग द लोकोमोटर सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द लोकोमोटर सिस्टम है क्या, हम उसको समझ सकें. दूसरी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू शुड नो अबाउट दैट. एंड बेटा अपने माइक ऑफ कर दें. Okay. This is what you will know about at the end of the lecture, that what are the components of the locomotor system. लोकोमोटर सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे हम समझेंगे कि कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या चीजें इसमें प्रेजेंट हैं. एंड देन ऑब्वियसली व्हाट आर द we'll move on the region what we are going to discuss through this module. And through this module we discuss about the upper limb. So we will see the organization of the upper limb and purpose of the upper limb. Purpose means that actually what function is assigned to the upper limb. अपर लिम्ब की जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अपर लिम्ब का मकसद क्या है, अपर लिम्ब है तो क्यों है, तो उसको हम देखेंगे. एंड देन अपर लिम्ब में जो डिफरेंट हमारे सब रीजन्स है, वी विल लुक अपॉन देम कि वो कौन से सब रीजन है जो हमारे पास है अपर लिम्ब में. तो now we are going to discuss one by one. Whenever we talk about any region in the body में कोई भी रीजन अगर आप पढ़ें तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं. You can see here and we will move on slides one by one. बेटा प्लीज माइक ऑफ कर दें काइंडली. Okay, so we'll see here different components we have to discuss in any region. We have the skin, obviously when we talk about the skin we have the components of the skin, superficial fascia, deep fascia, all these components. And then okay, and then the bones. Bones are the basic building blocks of the body. Bones are making the base of the body on which the structure is of the body. The bone in general anatomy, you have to come, you came through this, that bones, they are making the structure of the body, they are making the shape of the body. So bones are the basic building blocks of the body. In a sequence we go. Then you see these bones, they are joined with each other on a point. That point is called to be, that it is the point of the communication between bones where might be the movement is possible or not. Communication between bones with the point of the communication between bones with or without movement, it is called as a joint. So we will discuss the joints here in any region, but here we are talking about the upper limb. Then movement occurs on the joint between the bones, but this movement is carried out by means of the muscles. And these
मसल्स ऑब्वियसली जब हम ये कहते हैं कि मसल्स करा रही है मूवमेंट, तो मसल्स को कहीं से ऑर्डर तो आना चाहिए ना, मसल ऐसे तो नहीं कराएंगी। तो मसल्स को ऑर्डर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू द नर्व्स। नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि वी हैव टू कंपोनेंट्स हियर, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर द नर्व्स। तो नर्व्स मसल जो मूवमेंट कराती हैं। अब आप देखिए, हम इसके हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे जो हैं वो है बोन्स। बोन्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यू है on the points. These are called the joints. Joints पे movement होती है, but this movement is carried out by the muscles. Muscles movement कराते हैं, मगर muscles ऐसे movement नहीं कराए, उनको order आता है. It is through the nerve. And but not only this, these bones, joint, muscles, nerve, they have to be fed up. They have to be fed by means of blood. उनको पास blood आए तो उनको nutrition मिले, उनको oxygen मिले. So we have the arteries here, which we will see. Then drainage, for the drainage we have the veins, lymphatics and lymph nodes. They are present here. And in any region, certain special species are formed. वो special species जो भी है हम उनको भी discuss करेंगे. Then we have the fibrous extensions. Then we have the special structures. अब वो क्या है, आगे मैं आपको एक एक स्लाइड देख के मैं आपको बताता हूँ कि क्या है. आप देखिए, we have to see the skin and the cutaneous supply. Here I have put the figure of upper limb, and you can see here that this is a skin. Skin is supplied by means of what we feel the sensations. जब हम sensation feel करते हैं तो ये क्या है, ये nerves हैं जो supply कर रही हैं skin को, हम वो touch feel करते हैं. So ये देखिए, ये different colors आप देख रहे हैं. तो एक रीजन में डिफरेंट नर्व सप्लाई करती हैं, कहीं पर कोई है, कहीं पर कोई है. मैं यहाँ पर आपको डिटेल तो नहीं बता सकता, ये नाम मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे. सो हर जगह पे ये कलर्स आप देखें और ये नर्व देखें हर जगह पे. जैसे ये यहाँ पर रेडियल नर्व है, ये अल्ना नर्व है, ये जो है लेटरल कुटनेस नर्व फोर आर्म है, ये रेडियल नर्व है, ये आपकी जो अल्नर यहाँ पर है, ये मीडियन नर्व है. तो ये डिफरेंट नर्व्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं जो है यहाँ पर. तो जब हम डिस्कस करेंगे स्किन तो उसकी कुटेनेस सप्लाई, नर्व सप्लाई, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, द बोन्स वी कैन सी हियर. बेटा आप म्यूट कर दें प्लीज, काइंडली म्यूट कर दें, थैंक यू. तो ये देखिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये बोन्स हैं हमारे पास. अपर लिम्ब के we are here concerned with the upper limb, so you can see that we have the scapula, clavicle, humerus, radius ulna, and these are the hand bones. We'll discuss later on. मैं अभी उसको अपर लिम्ब पे हम आते हैं तो मैं आपको सारी वो चीजें बताता हूँ. So these are the bones, the basic building blocks. Bones डिस्कस करेंगे. जब हम bones डिस्कस करेंगे तो bones they are joined with each other on certain points where might be movement occurs or not. तो इन points को हम बोलते हैं joints. You can see here कि upper limb में कौन कौन से joint हैं, हम उनको देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जब हम हमारा upper limb मूव होगा. उसके बाद ये जो है मूवमेंट जॉइंट्स पे हो रही है. तो जॉइंट्स पे जो मूवमेंट हो रही है, इट इज बाय मींस ऑफ द मसल्स. यू कैन सी हियर डिफरेंट मसल्स दे आर लाइंग हियर. ये हमारा स्कैपुलर रीजन है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म है, फोर आर्म है, ये सारा आगे मैं इसको डिस्कस करता हूँ. तो मसल्स डिस्कस करेंगे, बट मसल्स दे आर कैरिड आउट बाय सर्टेन ऑर्डर्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स को ऑर्डर आएगा तभी वो एक्ट करेंगी, तभी वो मूव कराएंगी. तो
we will discuss the nerves. और ये देखें जनरल एनाटॉमी में आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया गया होगा, आई थिंक सो, कि wherever we have the plexus, we have the collection of the nerve, nerves की collection. nerves की collection जो है कहीं पर भी है, ये देखें, this is called as the plexus. और plexus यहाँ पर हम upper limb की बात कर रहे हैं, ये supply, it is supplying the upper limb. और upper limb आप देखेंगे आर्म को एनाटॉमी में कहते हैं ब्रेकियम. So this plexus is called as brachial plexus. आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये brachial plexus यहाँ पर है हमारे पास. Actually these are the nerves. हम इन nerves को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे. And then you can see these nerves. You can see these nerves. और nerves के बाद फिर obviously ये जो सारे स्ट्रक्चर हमारे bones हैं, हमारे muscles हैं, joints हैं, nerves हैं, ये सारी इनको जो है blood supply चाहिए. This is through the arteries. So we will discuss the arteries here in that region, whatever we will discuss. So here we are concerned with the upper limb. We will discuss these arteries. Then we need a drainage through the veins. You can see here. So this is the venous system. We will see the veins. They are here, lying here, and then lymphatic system. These are the lymphatics. We will discuss. बेटा अपने माइक ऑफ कर दें काइंडली प्लीज. ओके, तो उसके बाद आगे चलेंगे हम. ये देखिए लिम्फेटिक, और लिम्फेटिक चैनल्स हैं उनके रास्ते में कुछ स्टेशंस आती हैं, और दीज स्टेशंस आर कॉल्ड एज द लिम्फ नोड्स. तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन जो हमारे पास राउंडेड ये चीजें हैं, these are the lymph nodes, you can see here. फिर मैंने आपको बताया था कि we have certain special spaces, they are formed here in any region. We will discuss that, and you can see here these are spaces which are found in the axilla. Axilla itself is a great space, but these are the axillary spaces. We have the quadrangular, you can see this quadrangular, this is triangular, this is triangular. These spaces we will discuss in this region, and this is the axilla. You can see axilla itself is a special space here. This is the axilla. So this is axillary space. It is formed here. We will discuss these spaces as well. Here in front of the elbow joint, we have this space. And elbow in anatomical terms, elbow is called as cubitus. So the fossa, the space is formed. The shallow space, wherever shallow space is formed, it is called as a fossa, and it is formed in front of elbow. तो elbow को हम कहते हैं cubitus, और ये fossa form हो रहा है, इसको कहते हैं cubital fossa. We will discuss this. And certain extensions, of, you can see this is skin, superficial fascia, और ये deep fascia. ये जो deep fascia है उसकी extension आप देखें कि उससे ये septa, fibrous septa जा रहे हैं, which are attached to the bones. These septa are, अब उसको नाम देना है. एनाटॉमी में नाम इसी तरह से है, कुछ रिलेशन पे, कुछ शेप पे, कुछ नंबरिंग पे. तो एनाटॉमी में नाम इसी तरह है. तो these fibrous septa, ये fibrous septa है क्या कि ये extensions हैं deep fascia की, and they are extending to be attached deep. They are deep fascia तो superficial है ना. अब इससे
ये जाएंगे बोन पे टच होंगे और बोन डीप है, तो अब इनको नाम क्या दे हैं? दीज आर द फाइब्रस सेप्टा, हम इसको फाइब्रस सेप्टा कहते हैं, बट दे आर पासिंग थ्रू द मसल, बिटवीन द मसल। बिटवीन होता है इंटर, जैसे आपने इंटरमीडिएट पढ़ा ना, इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट इज बिटवीन a schooling and university system, between them is intermediate. So inter, this is inter and passing between the muscles, intermuscular septa, between muscles, intermuscular septa. So these are called the intermuscular septa. These are the fibrous extensions of the deep fascia. ये है, या आगे ये देखें, ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है, ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है, तो ये we will discuss। और कुछ और फाइब्रस एक्सटेंशंस हैं जो स्पेशल बैंड्स बनाती हैं, जैसे ये हमारे पास है, दिस इज फाइब्रस बैंड, और इसको नाम देना है। इसको नाम क्या दें कि ये जो है, ये जो लॉन्ग टेंडेंस है हमारे पास, ये फाइब्रस एक्सटेंशन उनको रिटेन करती है अपनी पोजीशन में, इसलिए इसको कहते हैं रेटिनाक्यूलम। This is retinaculum. So retinacula actually are the fibrous extensions of the deep fascia. ये देखें, तो ये भी हम पढ़ेंगे। And then special structures in any region. Here in the upper limb we have this special modified sweat gland. This is present in the pectoral region. This is called the breast. So breast, especially in the female at the puberty, after puberty develops, especially takes some shapes or functionally important, very, very important functionally. So we will discuss about the breast as well in this region. So these are the certain structures which are to be discussed in एनी रीजन। पहली तो ये चीजें कि जो हम जिस कोई भी रीजन पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं, तो आप देखें कि हमने सारी की। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं तो आपको वो जहन नशीन करनी चाहिए। आप देखें, किसी भी रीजन में हम जाएं, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? स्किन, उसके लिए हमें जो चीजें डिस्कस करनी है, ये देखिए, स्किन, cutaneous supply, then we have bones, और bones certain points पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, joints, जो joints डिस्कस करते हैं। उसके बाद उन जॉइंट्स पे जो मूवमेंट होती है, जॉइंट्स ऑब्वियसली, मैं फिर उसको रिपीट करता हूं डेफिनेशन को, जॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर टू आर मोर देन टू बोन्स मीट, कम्युनिकेट विथ और विदाउट मूवमेंट, जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिले और वहां पर मूवमेंट हो या ना हो, बट दिस इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। अगर मूवमेंट होती है तो दिस मूवमेंट इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ मसल्स। तो हम मसल्स डिस्कस करेंगे, और मसल्स ऐसे तो एक्ट नहीं करती, उनको कोई ऑर्डर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? वो नर्व्स हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स हैं, और नर्व्स अगर ब्रेन से निकलती हैं तो क्रेनियल नर्व्स हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो स्पाइनल नर्व्स हैं। तो वी विल डिस्कस, या उनका कोई नर्व्स, अलग अलग नर्व्स हैं, ठीक है, मगर नर्व्स एक दूसरे के साथ कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स बना दें, दिस इज कॉल्ड द प्लेक्सस। तो हम प्लेक्सस यहाँ पर हमारे पास है, और स्पेशली अपर और लोअर लिम्ब में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, दीज आर कॉल्ड द प्लेक्सस। अगर अपर लिम्ब को प्लेक्सस सप्लाई करता है तो आर्म को स्पेशली हम बोलते हैं ब्रेकियम। तो प्लेक्सस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ब्रेकियल प्लेक्सस। Okay, these are the nerves here. Then all these structures, bones, muscles, nerves, they need to be supplied by means of blood through the arteries. So we'll discuss the arteries.
Then we have the drainage through the veins. We'll discuss the veins. These are the veins. And then these blackish, you can see these blackish cords, lines. These are the lymphatics. And in the way of the lymphatic, we have certain circular thickened structures present here. These are the stations, relay stations for the lymphatics. These are called the lymph nodes. And especially some places they are present. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि they are present over the elbow. Or you can say these are the cubital nodes. And they are present in the axilla. We can say axillary nodes. These are the nodes. You can see this. Okay. And then we have certain special spaces in any region. We will discuss. यहाँ पर हमारे पास बहुत सी spaces है. ये छोटी-छोटी space है, axillary spaces. But actually, axilla itself is a larger space present here between upper part of the arm and upper part of the thoracic cavity, thorax. We will discuss this. This is the space present in front of the elbow, the cubital fossa. We will discuss this. And we have certain extensions of fibrous extension of the deep fascia. You can see these, but we have to give name to these fibrous extensions because these extensions, they are passing in between the muscles. So we can say intermuscular, between muscular muscle, intermuscular septa. Okay, dividing the subregions into 2 or 3 compartments, whether we can see this is the section of the cross section of the arm. We have this medial intermuscular septum, then lateral intermuscular septum, dividing the arm into 2 parts. Anterior to these septa, anterior part, posterior to these जैसा posterior part. Okay, बेटा अपने mic mute कर दे please, kindly. और कुछ और special extensions है, fibrous extensions. They are present in over special parts of the body. Here on the wrist, we have this fibrous septum which retains these long tendons. This is called the retinaculum. And retinacula we will discuss. And special organs, they are present, special organs in any part of the body. So यहाँ पर upper limb में जो हम देखते हैं, तो we have the breast here, a special modified sweat gland. It is a modified sweat gland. So this is breast. We will discuss inshallah this also in this region. Okay. So these are the components to be discussed in any region. Now locomotor system. Locomotor system, actually locomotion, your movements, और movements जो हैं वो ज़्यादातर होती हैं हमारे लिम्स पे, जो अपेंडिकुलर पार्ट ऑफ स्केलेटन है. ओके, ये देखें, स्लाइड स्टेप, वॉक रन, गैलप, जंपिंग, even with the upper limb, these are the locomotory systems. These are the non-locomotor. You have to see the difference. We are not concerned with the non-locomotor, but your body moves. What this see actually, you can movement that occur in the body parts or the whole body and do not cause the body to travel to another space. Means that you are not changing your places. Just you are moving. These are the non-locomotory. Locomotory, you are moving, changing your place from one place to another place. You are going and you are changing place to take something with your hands, with your upper limbs. Means you are moving your both limbs, upper and lower limb. अब आप दोनों आप move कर रहे हैं, आप अपनी place change कर रहे हैं, आप कोई चीजें उठा रहे हैं. तो this is actually the locomotor system. आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे है. तो ये locomotory system, बेटा अपने mic off कर दें kindly. Thank you. Okay. So you see here again the locomotory movements, jumping, galloping, skipping, running. Okay. So now this locomotor, how this locomotor system actually, what is locomotor system, how it works?
This is also called as musculoskeletal system. This is also called as activity system. But activity actually we carried out. This is human musculoskeletal system, human are named previously it was called as activity system. It's an organ system that gives humans the ability to move using their musculoskeletal system. Okay? आपको मूव करा रहे हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, उनको मूव करा रहे हैं. दिस ऑल इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. और करता क्या है? इट प्रोवाइड्स फॉर्म. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड फॉर्म, सपोर्ट, आपको सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी देता है, आपकी बॉडी को मूव कराता है. दिस ऑल आर द फंक्शंस. They are carried by musculoskeletal system. Human musculoskeletal system is made up of क्या है इसमें? आपके bones है and its related structures like ligaments. Ligaments are the fibrous bands which are connecting bones to bones. अगर कोई ऐसे fibrous bands हैं जो bone को bone के साथ connect करते हैं, you just say they are the ligaments. तो bones और जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, फाइब्रस बैंड, लिगामेंट्स, दे आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मसल्स और द फाइब्रस बैंड्स व्हिच आर कनेक्टिंग मसल्स विद द बोन्स, टेंडन्स, दे आर आल्सो इंक्लूडेड. अब देखिए, अब यहां पर डिफरेंस देखिए, यू कैन सी हियर द डिफरेंस. फाइब्रस बैंड्स कनेक्टिंग बोन्स टू बोन्स, एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ना, उनको कहते हैं लिगामेंट्स. बट फाइब्रस बैंड्स कनेक्टिंग मसल विद द बोन, उनको कहते हैं हम जॉइंट और टेंडन्स. ओके, बैंड्स कनेक्टिंग बोन टू बोन, लिगामेंट्स. फाइब्रस बैंड कनेक्टिंग टेंडन्स, टेंडन, मस्कुलर टेंडन, मसल टेंडन को विद फाइब्रस बैंड कनेक्टिंग मसल्स विद द बोन, मसल को बोन्स के साथ जो जोड़े फाइब्रस बैंड, उसको टेंडन कहते हैं. बोन को जो बोन के साथ जोड़े फाइब्रस बैंड, उसको लिगामेंट कहते हैं. सो वी हैव इन द ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वी हैव टू डिस्कस बोन्स and their related structures. These are the ligaments. Muscles and their related structures. These are the tendons. Then obviously अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या लोकोमोटर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें मूवमेंट की बात करते हैं, और मूवमेंट कहां पर होती है? जॉइंट्स पे होती है. ठीक है, मैं और सीक्वेंस आपको बताता हूं कि पहले हम बोन्स डिस्कस करेंगे. बोन्स दे आर जॉइंट, they are communicating with each other on certain points where might be movement occur or not. तो यहां पर लिम्स में तो मूवमेंट होती है. आपने लिगामेंट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी, जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी. उसमें फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और साइनोवेल जॉइंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द मूवमेंट. जो साइनोवेल जॉइंट्स है उसमें, और साइनोवेल जॉइंट्स ज्यादा मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. साइनोवेल ज्यादा मूवेबल, फाइब्रस वो मोस्टली नो मूवमेंट, कहीं पर कोई हो मोस्टली नो मूवमेंट. और फिर कार्टिलेजिनस बीच में आ जाते हैं. एक तरफ नो मूवमेंट है, दूसरी तरफ बिल्कुल वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है, बीच में आ जाते हैं लिटिल बिट मूवमेंट. ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है. तो यहाँ पर जो है आपके लिम्स में जो है अक्सर मोस्टली वी हैव द साइनोवेल जॉइंट, क्योंकि हमें ज्यादातर मूवमेंट चाहिए लिम्स में. और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम इसी पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब मूवमेंट क्यों चाहिए? कि हम प्लेस चेंज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं, हम काम करते हैं, हमारे जो स्किल्ड एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं थ्रू अपर लिम, या हम मूव करते हैं थ्रू लोअर लिम. तो हमारे पास तकरीबन इसमें हमें फ्री वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट चाहिए. तो सारे साइनोवेल जॉइंट्स तकरीबन हमारे यहाँ पड़े हुए हैं. तो बोन्स और फिर बोन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो पॉइंट्स पे, जहां पर जिनको हम जॉइंट्स कहते हैं. तो जॉइंट्स मस्कुलोस्केलेटल में आज पहले बोन्स आ गए. अब बोन एक तो नहीं है, मल्टीपल बोन्स हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे.
तो उनको कहते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स डिस्कस होगा, ये भी पार्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का है। मगर फिर ये जो जॉइंट पे मूवमेंट होती है कराएगा कौन? मसल्स कराएंगी। तो मसल्स इज ए पार्ट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मगर मसल के साथ साथ टेंडन, जो फाइब्रस बैंड ज्वाइन करते हैं मसल को बोन के साथ, टेंडन्स वो भी डिस्कस होंगे। बोन को बोन के साथ जो फाइब्रस बैंड्स ज्वाइन करते हैं, लिगामेंट्स, वो भी डिस्कस होंगे। कार्टिलेजेस डिस्कस होंगे, डिफरेंट कार्टिलेजेस वी हैव प्रेजेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू जो इन स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर structures to be discussed in the human musculoskeletal system. Functions क्या है musculoskeletal system के? We'll see here. Musculoskeletal system करता क्या है? Bones है हमारे पास। बेटा काइंडली मैंने आपको कहा है, it's my request के आप अपनी माइक्स जो है ऑफ कर दें। बोन्स जो है वो क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द बॉडी। अब ऑन ए होल अगर हम जाएं तो आप देखें आपके बोन्स अगर लिम्स के हैं तो आपको मूव कराते हैं। आपके बोन हेड एंड नेक के या थोरैक्स के या एब्डोमेन के आप देखें कि आपका स्कल है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन को। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री जो है वो एक कॉलम बनाते हैं, उसमें कैनाल होता है जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका जो रिब केज है वो आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके लिवर को, आपके स्प्लीन को, इन चीजों को सपोर्ट करता है, प्रिवेंट करता है। आपकी लोअर लिम्ब पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। आप खड़े हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप पूरी बॉडी का वेट आप उसके ऊपर है, तो ये आपकी लोअर लिम्ब सपोर्ट कर रही है। तो स्टेबिलिटी, आपकी बॉडी को स्टेबल बनाना, मजबूत बनाना और उसको सपोर्ट देना, ये बोन्स का काम। मसल्स का काम क्या है? मसल्स का काम ये है कि जब भी मसल हमारे जहन में आती है तो एक चीज जहन में आती है कि मसल मींस मूवमेंट। यस, बिल्कुल सही है कि मसल मूवमेंट है, बिल्कुल सही है। मगर नॉट ओनली दिस, अगर मसल मूव नहीं भी करती है तो क्या करती है? मसल अगर एक्टिव नहीं है, सपोज रिलैक्स है, तो मसल का कोई काम है? क्योंकि मसल का जब भी जहन में आता हम यही कहते हैं कि मसल जो है वो मूव कराती है। एक्सक्यूज मी बेटा, मसल का जब भी जहन में हमारे आता है तो हमें हमारे जहन में आता है कि मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, सही बात है। मगर उसके अलावा अगर मसल रिलैक्स है, मसल रिलैक्स तो कर क्या, मसल रिलैक्स है तो कम से कम ये तो कर रही है कि बोन्स को, क्योंकि मसल की जब हम पढ़ेंगे ना, मसल की ओरिजिन भी पढ़ेंगे, इंसर्शन भी पढ़ेंगे, तो मसल जब भी पढ़ेंगे तो क्या होगा कि मसल्स दे आर अटैच्ड टू द बोन्स। मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स बट डायरेक्टली नहीं, मस्कुलर फाइबर्स डायरेक्टली नहीं, बाय मींस ऑफ फाइब्रस बैंड्स। तो मैंने आपको पहले बताया कि फाइब्रस बैंड्स व्हिच कनेक्ट मसल्स विद द बोन्स दे आर कॉल्ड एज द टेंडन्स। ठीक है, तो टेंडन के थ्रू जो है वो मसल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स। तो मसल्स क्या करती हैं कि बोन्स को, अगर वो एक्टिव ना भी हो तो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। ठीक है, दे आर कीपिंग देम इन प्लेस। बोन्स को अपनी जगह पे रखना ये मसल्स का काम है। ठीक है, और फिर उनको मूव कराना, दूसरी चीज। और उसके बाद अब देखें जॉइंट्स का काम क्या है? व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द अगेन लोकोमोटर सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जॉइंट्स का काम क्या है? जॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दो बोन्स आपस में कनेक्ट हैं और मोस्टली मूवमेंट होती है, कहीं कहीं पर जैसे फाइब्रस जॉइंट से मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो टू अलाउ द मोशन, टू अलाउ द मूवमेंट। ठीक है, एंड देन कार्टिलेजेस
का काम क्या है? कार्टिलेज इज एक्चुअली जहां पर जॉइंट, स्पेशली साइनोवेल जॉइंट, आप साइनोवेल जॉइंट हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर अपर लिम्ब में हमारे पास शोल्डर जॉइंट है. After 2 days, you have a topic of again the synovial joints, sternoclavicular, acromioclavicular joints, and then we will discuss shoulder joint, elbow joint, wrist joint. इनमें जो आपस में जो बोन्स के एंड्स आपस में मिलते हैं, उनके बीच में कार्टिलेज होता है. कार्टिलेज क्यों होता है? कि अगर बोन्स दे आर हार्ड इनफ, बोन्स जो है वो हार्ड है, अगर एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, रबिंग करेंगे, तो चांसेस है कि फ्रिक्शन की वजह से अपने आप को डैमेज कर दें. तो क्या होगा कि ये जो कार्टिलेजेस है, ये एक्चुअली फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट, स्मूथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहां पर जो है बोन्स फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ रब कर सकते हैं, रबिंग हो सकती है, मगर कोई टूटने के चांसेस, कोई फ्रिक्शन के चांसेस नहीं है. ठीक है, तो ये काम है. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का और काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स. मैंने आपको बताया था, थोरेसिक केज में आपके वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट पड़ी हुई है थोरेक्स में, आपके लंग्स पड़े हुए हैं थोरेक्स में, आपके स्कल में ब्रेन पड़ा हुआ है, वाइटल ऑर्गन है, आपके वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, वाइटल ऑर्गन है. ऑल द वाइटल ऑर्गन्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ बोन्स. इवन आपका थोरेक्स जो है, एक्चुअली नजर आ रहा है कि ये थोरेक्स नीचे तक है, जहां तक रिब केज है, मगर एक्चुअली थोरेक्स क्योंकि डायफ्राम होता है, थोरेक्स हम डिस्कस करेंगे, वो ऊपर होता है, तो कुछ एब्डोमेन के वाइटल ऑर्गन्स दे आर प्रोटेक्टेड, स्पेशली द लिवर. आपका जो लिवर है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ द थोरेसिक केज. स्टोरेज ऑफ कैल्शियम फास्फोरस. आपके बोन्स जो है वो एक मीडियम है जहां पर कैल्शियम और फास्फोरस आपका स्टोरेज होता है. क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ हेमेटोपोएटिक सिस्टम, आपके जो ब्लड फॉर्मेशन सिस्टम है, हेमेटोपोएटिक सिस्टम. क्रिटिकल कंपोनेंट्स आपका जो बोन मैरो है, जहां से ब्लड बनता है, आपके जो स्टेम सेल्स बनते हैं बोन मैरो से, जहां पर रेड बोन मैरो होता है, जहाँ तो वो भी जो है ऑब्वियसली बोन मैरो हम कहते हैं, वो मैरो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स. तो बोन्स दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. तो हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को करते हैं कि इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ हेमेटोपोएटिक ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम. ठीक है, so these are the functions of the musculoskeletal system. Now we are moving especially towards what the region to be discussed next in this module, the organization. We will see the first part of the module, and we will discuss the upper limb, organization of the upper limb. अपर लिम्ब का काम क्या है? पहले तो हम देखेंगे, जब स्पेशली ये लिम्स जो हैं, जब हम लिम्स अपर और लोअर लिम्स दोनों को डिस्कस करते हैं, तो पहले तो हमें देखना होता है कि इनका काम क्या है. फिर हमें करना क्या होता है कि इनका काम हमें समझ में आ गया, तो हमको अगर अपर लिम्ब डिस्कस कर रहे हैं तो लोअर लिम्ब से हमें उसको जो है कंपेयर करना है. अगर लोअर लिम्ब डिस्कस कर रहे हैं तो अपर लिम्ब से हमें उसको करना है, कंपेयर करना है. ठीक है, तो अपर लिम्ब इज मेन फॉर प्रीहेंशन और स्किल्ड एक्टिविटीज. आप डेली रूटीन काम, जो डेली रूटीन वर्क्स दे आर कैरिड आउट बाय अपर लिम्ब. आप और अपर लिम्ब में हमारा जो सेंटर है डेली रूटीन काम का, डेली रूटीन वर्क्स का जो सेंटर है, इट इज द हैंड. और हैंड में भी डिजिट्स आपकी. आप देखिए, आप सारा दिन अभी भी, अब अगर आप मोबाइल पकड़े हुए हैं, या आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, या आप लिख रहे हैं, या आप खा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, यू आर दीज एक्टिविटीज दे आर कैरिड आउट बाय मींस ऑफ हैंड्स. और हैंड्स में भी आपकी डिजिट्स जो हैं, और डिजिट्स में भी 5 डिजिट्स हमारे पास. थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, और लिटिल फिंगर है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थंब है. थंब की वजह से सारी मूवमेंट्स, आपके ऑब्जेक्ट पिक होना और काम करना, सारे जो है इट इज थ्रू द थंब. इट इज थ्रू द डिजिट्स, बट स्पेशली द थंब. सो ऑल द skilled activities are
प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज, ये मैंने वर्ड इसलिए लिखा है कि बुक्स में लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. प्रीहेंशन और प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज, दे ऑल आर कैरिड आउट बाय मींस ऑफ द अपर लिम्ब. अब रूटीन वर्क्स है. आप देखिए कि जानवर जो है उनके 4 लेग्स, चारों पे वो चलते हैं. हम 2 लेग्स पे चलते हैं और 2 लेग्स हमारी जो हैं वो 2 लेग्स पे चलते हैं, और दो जो हमारी लिम्स हैं, जो अपर लिम्स हैं, दे आर फॉर स्किल्ड एक्टिविटीज, सारी मूवमेंट करते हैं. तो अब हम उस पे देखते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं. तो जिस पे हमारा वेट है, जिस पे हम चलते हैं, जो लोअर लिम्ब है, दे आर फॉर द लोकोमोशन. आप चेंज प्लेस करते हैं, आप मूव करते हैं और चेंज प्लेस करते हैं. मगर अपर लिम्ब जो है उसकी भी मूवमेंट है, उसकी भी मूवमेंट है, दोनों की. लोअर लिम्ब जो है वो आप सिर्फ ये एक्टिविटी करते हैं कि आप यू आर चेंजिंग योर प्लेस, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं. मगर अपर लिम्ब क्या करता है? स्किल्ड एक्टिविटीज. तो अब अपर लिम्ब अगर स्किल्ड एक्टिविटीज कर रहा है तो हमें ज्यादा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट अपर लिम्ब में चाहिए, ना कि लोअर लिम्ब. अपर लिम्ब में ज्यादा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, वी नीड वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इन द अपर लिम्ब. तो इस वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट के लिए द स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू दैट. स्ट्रक्चर जो हमारा है वो, अब ये देखें, आपकी जो स्किल्ड एक्टिविटीज दे आर कैरिड आउट बाय द अपर लिम्ब. और अपर लिम्ब में भी मैंने आपको कहा कि हैंड, और हैंड में भी आपके जो है डिजिट्स हैं. ये देखें, ये सारी मूवमेंट्स देखें कि किस तरह से आप ये फिस्ट बना रहे हैं, इनको खोल रहे हैं, आप थंब इस तरफ लेके आ रहे हैं, ये 2 विक्ट्री निशान दिखा रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं कोई चीजें, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग आप कर रहे हैं. ये सारी मूवमेंट्स दे आर कैरिड आउट बाय मींस ऑफ दिस अपर लिम्ब थ्रू द हैंड. ठीक है, स्किल्ड एक्टिविटीज. ये देखें यहाँ पर, इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका थंब. ठीक है, हालांकि 5 डिजिट्स काम करती हैं, मगर आप देखिए सारी मूवमेंट्स यहाँ पर, मूवमेंट्स आपने पढ़ी होंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स. यहाँ पर स्पेशल मूवमेंट अपर लिम्ब में जो एक है, हैंड में जो एक है, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्टली काज्ड बाय द थंब. थोड़ी सी लिटिल फिंगर में है मगर थंब में ज्यादा है. अपोजिशन, अपोज करते हैं ना, जब आप थंब को दूसरी फिंगर्स के अपोजिंग लेके आएंगे तो थोड़ा सा मैंने वीडियो चलाई, अब आप देखें, आप थंब को ये अपोज लेके आएंगे, यहाँ पर आप इनको ऐसे लेके आएंगे ना. तो अगर अपोज करेंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी चीज पिक कर सकते हैं. दिस अपोजिशन इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय मींस ऑफ द थंब. तो डिफरेंट हमारे पास मोमेंट्स हैं which are carried out by means of the digits. Skilled activities, they are caused by the digits or the fingers. जिसकी वजह से हमारा जो अपर लिम्ब है उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दैट, वो किस तरह से है, मैं आगे चलता हूं और आपको समझाता जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. ये देखें, ये सारी मूवमेंट्स हैं जो which are carried. पॉइंटिंग फिंगर है, ये देखें, आप ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, सारी मूवमेंट दिखाई गई है. अब आप इसको कंपेयर करें लोअर लिम्ब के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा लोअर लिम्ब की रेंज वाइड नहीं है, अपर लिम्ब की वाइड रेंज क्यों है. वो तो मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द फंक्शन. लोअर लिम्ब का सिर्फ लोकोमोशन है. हम आस्ता आस्ता मूव करते जाते हैं, वी आर चेंजिंग आवर प्लेस. ठीक है, और ओनली चेंजिंग प्लेस. मगर अपर लिम्ब स्किल्ड एक्टिविटी तो ज्यादा वाइड हमारी मूवमेंट होती है अपर लिम्ब की. चले जाते हैं आगे. और भी ये देखें, स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास 2 हैं जो है पार्ट्स, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, अपेंडिकुलर जो अपेंडेजेस है, जो एक्सटेंशंस है,
आपकी लोअर लिम्ब, आपकी अपर लिम्ब, दिस इज whatever the bones they are present in the appendicular skeleton, you can see here appendages में जो भी bones present है, they are called as appendicular skeleton. आपका अपर लिम्ब स्टार्ट होता है ह्यूमरस से, आपका लोअर लिम्ब स्टार्ट होता है फीमर से. तो फिर आप कहेंगे कि ये जो हिप बोन है, हम लोअर लिम्ब में डिस्कस करते हैं, ये स्केपुला और क्लेविकुला है, हम अपर लिम्ब में डिस्कस करते हैं. हाँ करते हैं, मगर अब एक और चीज आ गई कि भाई आपका जो एक्सियल स्केलेटन है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आपकी रिब्स है, आपका स्टर्नम है, ये एक्सियल स्केलेटन है. आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, हमने कहा कि अपर लिम्ब इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमरस, लोअर लिम्ब इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फीमर. तो फिर ये हिप बोन हम लोअर लिम्ब में डिस्कस करते हैं, तो फिर ये भी लोअर लिम्ब में अपेंडिकुलर स्केलेटन में आना चाहिए. या अपर लिम्ब में हम स्केपुला और क्लेविकल डिस्कस करते हैं, तो ये भी हमने अपर लिम्ब के साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ इसको इंक्लूड करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. मगर नहीं, appendicular skeleton is connected with the axial skeleton by means of set of bone. वो set of bone जो appendicular को axial skeleton के साथ join करे, set of bone joining appendicular skeleton with the axial skeleton, it is called as the girdle. Girdle is a set of bone. बेटा माइक ऑफ कर दें प्लीज काइंडली. थैंक यू. सेट ऑफ बोन, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो यू जस्ट रेज योर हैंड. मैं आपको यहाँ से फिर इंडिकेट करूंगा, आप मुझसे पूछिएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो जस्ट रेज योर हैंड, तो मैं यहीं से आपको इंडिकेट करूंगा, फिर आप मुझसे पूछ लिए. अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, अगर कोई बात रिपीट करनी है, तो यू जस्ट रेज योर हैंड. मैं उसको आपको जो है रिप्लाई, प्रॉम्प्ट रिप्लाई उसी टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट. ठीक है, यहाँ पर कोई बात ऐसी है अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट रेज योर हैंड. ओके, तो सेट ऑफ बोन कनेक्टिंग अपेंडिकुलर विद द एक्सियल स्केलेटन, वो सेट ऑफ बोन जो अपेंडिकुलर को एक्सियल स्केलेटन के साथ ज्वाइन कर रहा है. अपेंडिकुलर क्या, मैंने आपको बताया कि लोअर लिम्ब फीमर से स्टार्ट होता है, तो पहला बोन फीमर है, फीमर के बाद सारे बोन अपेंडिकुलर में. अपर लिम्ब ह्यूमरस से स्टार्ट हो रहा है, तो ह्यूमरस के बाद सारे बोन आपके अपेंडिकुलर में हैं, फोर आर्म के और हैंड के. तो फिर और एक्सियल स्केलेटन क्या, आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपके थोरेक्स. ओके, तो सेट ऑफ बोन कनेक्टिंग अपेंडिकुलर विद द एक्सियल स्केलेटन. अब आप देखें यहाँ पर फीमर और यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन, फीमर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, बीच में आ गया ये हिप बोन. अब ये इट इज अ सेट ऑफ बोन कनेक्टिंग अपेंडिकुलर विद द एक्सियल स्केलेटन. दिस इज कॉल्ड एज गर्डल, और ये है हिप बोन. दोनों तरफ के हिप बोन आपस में ज्वाइन हो तो they are forming hip girdle. This is hip girdle. Sorry, this is called as a pelvis. I'm sorry. This is called as pelvis. Hip girdle is formed by hip bone, और hip bone एक नहीं है, 3 पार्ट्स हैं. ये ऊपर वाला पार्ट इसको इलियम कहते हैं, हम आगे लोअर लिम्ब में डिस्कस करेंगे. और नीचे वाले 2 पार्ट हैं, जो पीछे वाला है इसको इशियम कहते हैं, आगे वाला प्यूबिस कहते हैं. ये तीनों मिला के कहा जाता है इसको हिप बोन. Hip bone is actually the girdle, and it is forming the hip girdle. ये इस तरफ की, ये इस तरफ की. तो hip girdle is joining appendicular skeleton femur with the axial skeleton vertebra. ये sacral vertebra, sacrum इसको कहते हैं. तो इसके साथ फीमर को sacrum के साथ ज्वाइन करना, फीमर को vertebra के साथ ज्वाइन करना by means of this bone, hip bone. इसीलिए इसको कहते हैं girdle. Girdle is a set of bone connecting appendicular with the axial skeleton. ठीक है, तो this is hip girdle. ऐसे ही अपर लिम्ब में ह्यूमरस को कनेक्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ. एक्सियल स्केलेटन क्या है, आपकी रिब्स है या स्टर्नम है, जो भी है, ये एक्सियल स्केलेटन है. एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल मींस सेंट्रल एक्सिस पे आपके जो पड़े हुए हैं, दिस इज एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, तो
अब ह्यूमरस को कनेक्ट करें तो कौन कौन कनेक्ट करता है? एक स्केपुला है, ह्यूमरस कनेक्ट है स्केपुला के साथ, स्केपुला कनेक्ट है क्लेविकल के साथ, क्लेविकल कनेक्ट है स्टर्नम के साथ, ठीक है। तो क्लेविकल और स्केपुला ये दोनों दे आर पार्ट ऑफ द गर्डल हेयर इन द अपर लिम्ब connecting appendicular skeleton humerus with the axial skeleton sternum. तो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सियल एंड appendicular skeleton. This is the set of bone. This is clavicle and scapula. This is called as the, now it is present over the shoulder. It is called as shoulder girdle. या फिर पेक्टोरल रीजन में है क्लेविकल प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज द पेक्टोरल गर्डल। तो इसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, इसको शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। यू कैन सी हियर, ओके। सो फर्क क्या है? अब यहां पर हम आते हैं कि आपका जो लोअर लिम्ब है अपेंडिकुलर स्केलेटन के फीमर को कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन के साथ, वर्टिब्रा के साथ। दिस इज हिप गर्डल। और यहां पर ये शोल्डर गर्डल, स्केपुला एंड क्लेविकल, जो ह्यूमरस को कनेक्ट करता है स्टर्नम के साथ। फर्क क्या है? हमें फर्क दिखता है, क्योंकि अब फर्क किस बेस पे देखेंगे? फर्क फंक्शन के बेस पे देखेंगे कि भाई लोअर लिम्ब का जो फंक्शन है वो है लोकोमोशन, थोड़ी सी चेंज प्लेस की, बस चले हम इधर उधर गए। अपर लिम्ब का जो है वो है प्रीहेंशन, स्किल्ड एक्टिविटी। तो अपर लिम्ब में ज्यादा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है। तो वो कैसे है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट? अपर लिम्ब को नेचर ने क्या स्ट्रक्चर दिया जिसकी वजह से जो रेंज मूवमेंट की ज्यादा बढ़ गई है अपर लिम्ब में? लोअर लिम्ब में वो इतनी नहीं है, लिमिटेड है। तो पहली पॉइंट गर्डल की है क्या, कि जो ये हिप गर्डल है दोनों साइड की, ये राइट हिप गर्डल और लेफ्ट हिप गर्डल, यानी कि दोनों हिप बोन एंटीरियरली ज्वाइन करते हैं। ये इनके जो प्यूबिक पार्ट है, प्यूबिक सिम्फिसिस पे, यहाँ पर ये फाइब्रस जॉइंट। एक्सक्यूज मी बेटा, हेलो यार, हल्ले पे मुझे फोन यार है, बजे खत्म किया। ओके ओके। तो ये जो दो हिप बोन है आपस में ज्वाइन है आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फिसिस पे, और ये सिम्फिसिस ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी। यहाँ पर ये फिक्स है, ये एक दूसरे पे मूव नहीं करेंगे। बोन की काम है वो मूव करना, यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही। मैंने आपको कहा ना, जॉइंट वो है जहां पर मूव कम्युनिकेशन ऑफ द बोन्स विथ और विदाउट मूवमेंट हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। तो ये फाइब्रस जॉइंट का पावर। फाइब्रस जॉइंट मैंने फिर आपको बताई थी कि 3 टाइप्स फाइब्रस हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। साइनोवियल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है। बीच में कार्टिलेजिनस थोड़ी बहुत है या नहीं है, ठीक है। कार्टिलेजिनस में फिर प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से है। प्राइमरी में जो है वो आप उसको छोड़ दें, हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो हिप बोन्स हैं, दो हिप गर्डल्स हैं, एक दूसरे के साथ आगे की तरफ ज्वाइन करती हैं जहां पर कोई मूवमेंट नहीं है। फिर ये दोनों हिप बोन्स जो है ज्वाइन करती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ, सैक्रल वर्टिब्री सेक्रम के साथ ऑन द सैक्रोइलिक जॉइंट। यहाँ पर भी बहुत ही कोई लिटिल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, या तो होती नहीं होती है तो बहुत कम ही होती है। तो अब ये होती नहीं है, यहाँ पर भी मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो गर्डल है वो खुद फिक्स है, गर्डल की मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है कि फीमर इज मूविंग, फीमर जो है वो ज्वाइंट बना रहा है यहाँ पर हिप बोन के साथ। दिस इज कॉल्ड एज हिप ज्वाइंट। तो फीमर और हिप बोन की आपस में मूवमेंट हो रही है हिप ज्वाइंट पे, या फीमर मूव कर रहा है या हिप बोन मूव कर रहा है, मगर गर्डल जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब जो भी मूवमेंट हो रही है ज्वाइंट पे हो रही है। अब आते हैं अपर लिम्ब में। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अब अपर लिम्ब की बात करूंगा, फिर आपको कंपैरिजन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अपर लिम्ब में। आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन ह्यूमरस, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन ह्यूमरस, आपका एक्सियल स्केलेटन, ये स्टर्नम, रिब्स वगैरह, ये एंड इवन वर्टिब्रा। अब यहां पर आप देखें
कि आपकी जो गर्डल है, जो ये शोल्डर गर्डल जिसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, क्लेविकल और स्केपुला, ह्यूमरस इज जॉइंट विद द स्केपुला, ह्यूमरस स्केपुला के साथ जॉइंट बना रहा है, जिसको कहते हैं शोल्डर जॉइंट, कॉमनली आपको पता है शोल्डर जॉइंट का। स्केपुला is present posteriorly on the ribs, thoracic cage पे posteriorly present है, मगर स्केपुला का कोई भी डायरेक्ट बोनी आर्टिकुलेशन, बोन टू बोन आर्टिकुलेशन एक्सियल स्केलेटन के साथ नहीं है। स्केपुला आपके रिब्स के साथ या आपकी वर्टिब्रा के साथ ज्वाइंट नहीं है, स्केपुला सिर्फ पड़ा हुआ है उनके ऊपर, रिब्स के ऊपर, ज्वाइंट बना नहीं रहा, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऊपर पड़ा हुआ है। स्केपुला जुड़ा हुआ है किसके साथ? इट इज फॉर्मिंग ज्वाइंट विद द क्लेविकल। अब क्लेविकल जाके जो है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ मिलता है आगे की तरफ, कहां पर? स्टर्नम पे, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। तो एक छोटी सी आर्टिकुलेशन है गर्डल की एक्सियल स्केलेटन के साथ, गर्डल की एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या कि ओनली क्लेविकल इज जॉइनिंग एक्सियल स्केलेटन, स्टर्नम, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। स्केपुला फ्री है, क्लेविकल भी फ्री है, सिर्फ वो जो है एक्सियल स्केलेटन के साथ उसकी कम्युनिकेशन है, एक छोटा सा जॉइंट बन रहा है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, जो मैंने आपको बताया था। दो दिन बाद इंशाल्लाह इट विल बी डिस्कस विद यू। अब फिर वापस आते हैं इसकी हिप गर्डल पे। आप देखें कि हिप गर्डल क्या है कि आगे दोनों हिप बोन फिक्स, यहाँ पर पीछे सेक्रम के साथ मिले हुए हैं, मगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, होती भी है तो कोई मामूली, वरना नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी गर्डल है वो फिक्स है, जो भी मूवमेंट हो रही है गर्डल और अपेंडिकुलर स्केलेटन मींस के फीमर के बीच में हो रहा है, यहाँ पर फीमर पड़ा हुआ होता है, जो भी मूवमेंट हो रही है वो उसके इन दोनों के बीच में पड़ी होती है, ठीक है। मूवमेंट हो रही है कहां पर? हिप जॉइंट पे, गर्डल मूव नहीं कर रही, गर्डल फिक्स है। मगर इन केस ऑफ अपर लिम्ब कि ये जो शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट हो रही है बिटवीन द ह्यूमरस एंड द स्केपुला, वो तो हो ही रही है, मगर उसके साथ साथ क्योंकि स्केपुला फ्री पड़ा हुआ है तो स्केपुला खुद भी मूव हो रहा है। सॉरी, स्केपुला अगर खुद मूव हो रहा है तो इसका मतलब है स्केपुला फिक्स नहीं है, स्केपुला फिक्स नहीं है, मूव हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गर्डल भी मूव हो रही है, यहाँ पर गर्डल फिक्स है, यहाँ पर गर्डल भी मूव हो रही है। मतलब अब क्या होगा? अब इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गई बनिस्बत इसके लोअर लिम्ब के अपर लिम्ब, गर्डल पे ही रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ गई। एक तो गर्डल ही खुद मूवेबल है तो रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ गई, यहाँ पर गर्डल फिक्स है तो जो भी मूवमेंट हो रही जॉइंट पे हो रही है। यहाँ पर नॉट ओनली कि जॉइंट शोल्डर जॉइंट पे हो रही है, लोअर लिम्ब में सिर्फ मूवमेंट हो रही है हिप जॉइंट पे, गर्डल फिक्स। मगर अपर लिम्ब में क्या कि सिर्फ शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट नहीं हो रही, गर्डल भी मूव हो रही है उसके साथ। अगर ह्यूमरस मूव कर रहा है तो स्केपुला भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रेंज बढ़ गई ना, और हमें रेंज बढ़ी हुई रेंज, इंक्रीज रेंज, वी नीड दिस बिकॉज ऑफ द स्किल्ड एक्टिविटीज, हमें ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो रेंज है मूवमेंट की यहाँ पर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गर्डल लोअर लिम्ब में जो फिक्स है। दूसरी चीज ये है कि जॉइंट, इनिशियल जॉइंट, यहाँ पर इनिशियल जॉइंट लोअर लिम्ब में है हिप जॉइंट, और यहाँ पर इनिशियल जॉइंट जो अपर लिम्ब में है वो शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट हैज वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा, शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है बनिस्बत अपर जिस हिप जॉइंट। और आपने जॉइंट्स में पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था इफ यू नो, क्योंकि मैंने आपकी क्लास ली थी जॉइंट्स की, स्पेशली साइनोवियल जॉइंट्स की। दे आर मोस्टली प्रेजेंट, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट साइनोवियल जॉइंट इन द लिम्स, ओके। लिम्स में साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी। जॉइंट जितना ज्यादा मोबाइल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और अगर स्टेबल होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, ठीक है। जैसे आपका शोल्डर जॉइंट है, मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द बॉडी,
or most weak joint. Most commonly dislocated joint of the body is the shoulder joint. क्यों? क्योंकि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. अब उसकी मोबिलिटी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए वो ज्यादा लोकेट होता है. पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो डिसलोकेशन होती है वो शोल्डर जॉइंट की होती है, क्योंकि वो मोस्ट मोबाइल, पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मोबाइल वो है, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस भी वही होगा. ये रूल है. मगर यहां पर हिप जॉइंट में मूवमेंट होती है, मगर हिप जॉइंट सारी बॉडी में यही रूल हम अप्लाई करेंगे, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी. मगर हिप जॉइंट इस रूल को तोड़ रहा है. इट इज ब्रेकिंग दैट रूल. इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोबाइल एज वेल. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लोअर लिम्ब के फंक्शन है, मैंने आपको बताया था. अपर लिम्ब का तो है कि प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज, प्रीहेंशन या स्किल्ड एक्टिविटीज. लोअर लिम्ब के जो हमने बताया था कि दो फंक्शन है हमारे पास, सपोर्ट एंड लोकोमोशन. सपोर्ट मींस कि स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये हिप जॉइंट प्रोवाइड कर रहा है. लोकोमोशन मूवमेंट चाहिए तो भी प्रोवाइड कर रहा है. तो वाहिद जॉइंट है बॉडी में ये हिप जॉइंट. मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था, इंट्रोडक्टरी क्लास में, कि इट इज ब्रेकिंग द रूल. इट इज मोर स्टेबल, इट इज इवन मोबाइल. तो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ये रूल तोड़ रहा है. ये स्टेबल भी है, मोबाइल भी है. मगर फिर उस बात पे आते हैं कि इसकी रेंज जो है इतनी ज्यादा नहीं है जितनी शोल्डर की है. शोल्डर की रेंज बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो एक तो कंपैरिजन ये है कि लोअर लिम्ब में जो है वो गर्डल फिक्स है, अपर लिम्ब में गर्डल खुद मूव कर रही है, तो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट हो गई. मैंने कहा था ना कंपेयर करेंगे. फिर हम आते हैं यहां पर. आप नी जॉइंट पे देखें. हम हिप जॉइंट पे देख चुके हैं, अब नी जॉइंट पे देखें. नी जॉइंट पे क्या है? नी जॉइंट पे आप या एल्बो जॉइंट पे इनको कंपेयर करें तो एल्बो जॉइंट जो है वो यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है. फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है एल्बो जॉइंट पे, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नी जॉइंट पे भी होती है. ठीक है, दोनों पे होती है. मगर फर्क क्या है कि क्योंकि लोअर लिम्ब में हमें सपोर्ट चाहिए, तो नी जॉइंट जब एक्सटेंड होता है ना, वो लॉक हो जाता है. लॉक हो जाता है, हम सीधे खड़े होते हैं. वरना तो हम मूव करते रहते हैं ना, और खड़े होने में भी जो है वो फीमर जो उस पे मूव करता है, टिबिया पे. फीमर और टिबिया के बीच में जॉइंट बनता है. फिबुला इस पे पार्टिसिपेट नहीं करता. तो जब एक्सटेंशन होती है नी जॉइंट पे तो फिक्स हो जाता है इन जॉइंट. फिक्स लॉकिंग हो जाती है उसकी. लॉक हो जाता है तो फिर हम मूव नहीं कर सकते. तो ये स्टेबिलिटी है. यहां पर भी ऐसे ही है, मगर यहां पर हमें क्योंकि इस पे वजन नहीं है, अपर लिम्ब में हमारे पास वजन नहीं है, तो फिर इस पे कोई जरूरत नहीं है हमें इसकी स्ट्रेंथ की, लॉकिंग. यहाँ पर लॉकिंग नहीं होती एल्बो जॉइंट पे. उसके बाद आप देखेंगे लेग में बोन्स हैं और फोरआर्म में भी बोन्स हैं. कंपैरिजन बता रहा हूं. लेग में हमारे पास टिबिया, ये देखिए ग्रीन कलर का और येलो कलर का. फिबुला, इनके बीच में पिंकिश इंट्रोशस मेम्ब्रेन. इंट्रोशस, इंटर between bones, interosseous, osseous means bones, so it is called introosseous bone, introosseous membrane, sorry. ये आपस में जुड़े हुए हैं. फिब्यूला और टिबिया, टिबियोफिबुलर जॉइंट बनते हैं, मगर ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जॉइंट्स. सिंडेस्मोसिस में इसको डिटेल में नहीं जा रहा. इस तरह से जुड़े हुए हैं कि देयर इज नो एनी मूवमेंट. फिक्स है एक दूसरे के ऊपर, कोई एक दूसरे के ऊपर इनकी मूवमेंट नहीं हो रही. मगर आप देखें कि जो फोरआर्म बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ये मूवमेंट हो रही है. जो मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा कि प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. एक दूसरे के ऊपर फोरआर्म बोन्स मूव कर रहे हैं, मगर लेग के बोन्स नहीं मूव कर रहे. तो ये भी एक कंपैरिजन है कि ये अपर लिम्ब में वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा हो गई, लोअर लिम्ब में नहीं है. लेग एक ही जगह पे पकड़ी है, क्योंकि दोनों लेग बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए मगर कोई मूवमेंट नहीं है. मैंने आपको कहा था जॉइंट पे मूवमेंट हो या ना हो, मगर फोरआर्म के बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं मगर फिर भी मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट की एक और पॉइंट है. एक्सक्यूज मी.
हेलो तुम्हारे सांगोला सुना क्लास पे था वहां जो चैनल जलाए ओके अब यहाँ पर आ गए अच्छा अब और ज्यादा कंपैरिजन आगे जाए और आगे जाए हम फोरम से आगे रिस्ट पे जाए रिस्ट पे आप देखिए छोटे छोटे बोन्स कार्पल बोन्स पड़े हुए 8 बोन्स हैं 2 रोज इसकी बनी होती है प्रॉक्सिमल रो में 4 डिस्टल रो में 4 फिर उनके नाम अब उसके नाम पे अभी डिस्कशन नहीं करते आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह यहाँ पे ये छोटे छोटे बोन एक दूसरे के साथ इनके प्लेन जॉइंट्स बने हुए हैं जिसपे मूवमेंट थोड़ी रेंज ज्यादा है यहाँ पर आप देखें कि ये टार्सल बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं मगर ये वेज शेप्ड है और somehow they are interlocked एक दूसरे के साथ लॉक हैं थोड़े थोड़े से एक दूसरे के से होते हैं मगर मूवमेंट की रेंज ज्यादा नहीं है बनिस्बत अपर लिम्ब में क्योंकि इसके कार्पल बोन्स पे ये जो रिस्ट पे कार्पल बोन्स है और यहाँ पर टार्सल बोन्स है एंकल पे कार्पल बोन्स में रेंज ज्यादा है वाइड बनिस्बत टार्सल बोन के क्योंकि हमें अपर लिम्ब में वाइड रेंज चाहिए तो ये यहाँ पर है ठीक है तो इस तरह से ये हमने कंपैरिजन किया कि अपर लिम्ब जो है व्हिच इज मेन पहले पर्पस हमने देखा व्हिच इज मेन फॉर द स्किल्ड एक्टिविटीज तो उसकी वजह से हमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट चाहिए तो वाइड रेंज किस तरह से है और हमने कंपेयर किया तो आप ऊपर से एक दफा मैं रिपीट करता हूं कि गर्डल लोअर लिम्ब में फिक्स है इसमें गर्डल मूव कर रही है तो रेंज ज्यादा हो गई और शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट को कंपेयर करें तो शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट और ज्यादा सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है हिप जॉइंट पे है मगर लिमिटेड है मूवमेंट मगर लिमिटेड है आगे जाएं तो आपका जो एल्बो और नी को कंपेयर करें तो एल्बो पे मूवमेंट है नी पे भी मूवमेंट है मगर नी पे जो मूवमेंट है वो एक्सटेंशन होती है तो फिक्स हो जाता है लॉक हो जाता है एल्बो लॉक नहीं होता आगे जाए तो लेग और फोरआर्म को कंपेयर करें तो लेग के बोन एक दूसरे के साथ फिक्स है कोई एक दूसरे पे मूवमेंट नहीं टिबिया फिबुला नहीं हो रहा मगर यहाँ पर जो है फोरआर्म के जो बोन्स है रेडियस अल्ना एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं जो हम सुपिनेशन और प्रोनेशन करते हैं ये देखें ये सीधे पड़े हुए हैं अब ये मूव कर रहे हैं रेडियस अल्ना के ऊपर मूव कर रहा है और ये देखिए प्रोनेशन हो गई ये सुपाइन पोजीशन है ये रोटेटरी मूवमेंट और ये फिर प्रोनेशन मूवमेंट ठीक है इस तरह से और आगे जाएं तो आप देखें और कंपेयर करें तो ये जो आपके रिस्ट के बोन्स है कार्पल बोन्स हैं ये कार्पल बोन्स जो हैं यहाँ पर ये प्लेन जॉइंट छोटे छोटे बोन्स हैं एक दूसरे के साथ लॉक तो नहीं है प्लेन जॉइंट्स हैं और मूवमेंट हो रही है इनके ऊपर थोड़ी रेंज ज्यादा है टार्सल बोन्स थोड़े से एक दूसरे वेज शेप्ड एक दूसरे के ऊपर लॉक हैं और इसकी मूवमेंट की रेंज जो है वो कम है तो ज्यादा है अपर लिम्ब में हमें वो चाहिए और हैंड की मूवमेंट्स मैंने आपको पहले दिखा दी जब हम अपर लिम्ब डिस्कस करेंगे तो अब उस पे फंक्शनल एक्सट्रीमिटी है अपर एक्सट्रीमिटी जो है बॉडी की उसमें हम बेटा आप अपने स्पीकर ऑफ कर दें थैंक यू ठीक है प्लीज बेटा स्पीकर ऑफ कर दें तो अब इसमें जो हम पढ़ेंगे मैंने आपको कहा था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमरस मींस के आर्म this portion where the humerus is lying this portion of the upper limb is called as the arm उसके बाद हमारा एल्बो जॉइंट आ जाता है एल्बो जॉइंट के बाद फोरआर्म आ जाता है जिसमें हमारे पास रेडियस और अल्ना 2 बोन्स हैं और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है हैंड ये 3 पार्ट्स हैं अपेंडिकुलर के मगर नॉट ओनली 3 पार्ट्स मगर 2 पार्ट्स और है वो मैं आगे बताता हूं आपको इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट टू द फिंगर्स एंड कंटेन्स 30 बोन्स अगर आप काउंट करेंगे तो शोल्डर जॉइंट से आपके जो है फिंगर्स तक आपके 30 बोन्स जैसे आपका एक ह्यूमरस है 2 आपके रेडियस और अल्ना है तो 3 हो गए और 8 आपके जो है कार्पल बोन्स हो गए 11 हो गए 5 मेटाकार्पल्स हैं 16 हो गए और 14 आपके जो है फिंगर्स के जो फेलेंजेस हैं 14 हैं तो टोटल 30 बोन्स हो गए एक साइड पे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट के आगे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नर्व वेसल्स मैंने आपको कहा किसी भी रीजन हम जाते तो कंपोनेंट सारे मैंने आपको बताए थे फ्रॉम बोन्स टू नर्व्स मसल्स जॉइंट्स ब्लड वेसल्स जिसमें हमारे पास आर्टरीज वेन्स और लिम्फेटिक्स आ जाती हैं फिर स्पेसिस फिर इंटरमस्कुलर सेप्टा जो हमने फाइब्रस एक्सटेंशंस फिर स्पेशल ग्लैंड्स जैसे यहाँ पर हमारे पास ब्रेस्ट है वो पढ़ेंगे ब्रेस्ट स्पेशल
टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अब मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड वो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये नर्व्स जो सप्लाई करती हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको हम प्लेक्सिस कहते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सिस जो हम जो है, ठीक है, वो हम आगे करेंगे इसको डिस्कस जो भी है। बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट बनता है शोल्डर ज्वाइंट। अब ये मैंने कंपैरिजन लिखा है, मैं इसके ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। मैं इसको जो है, अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारा ह्यूमरस है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पहला पार्ट है, ह्यूमरस है। और ये दिस पोर्शन बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो, दिस इज कॉल्ड एज द आर्म, जिसमें ह्यूमरस पड़ा हुआ है। बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट वी हैव दिस फोर आर्म, जिसमें हमारे पास रेडियस ये ग्रीन कलर का और येलो कलर का हमारे पास ये अल्ना पड़ा हुआ है। और ओके, और उसके आगे हम जाएंगे, ये पर्पल कलर के हमारे पास जो है ये कार्पल बोन्स हैं, फिर ब्लू कलर के मेटाकार्पल बोन्स हैं, और फिर पर्पल कलर के हमारे पास ये फेलेंजेस हैं। तो ये देखें, 1, ये 2, 3, 3 और 8 ये कार्पल बोन्स, 11, 5 ये मेटाकार्पल, 16 और 14 ये टोटल 30 बोन्स हमारे पास ये अपर लिम्ब के अपेंडिकुलर स्केलेटन के। बाकी गर्डल की बात नहीं कर रहे, गर्डल के जो 2 बोन्स हैं तो वो दोनों भी रीजन बना रहे हैं। तो एक्चुअली रीजन जो हम पढ़ेंगे वो 5 पढ़ेंगे। अब गर्डल में आपके 2 बोन है, एक आपकी क्लेविकल जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, जिस रीजन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेक्टोरल रीजन। दूसरा गर्डल का पार्ट हमारे पास स्केपुला है, जो पोस्टीरियरली थोरेसिक वॉल पे प्रेजेंट है, और वो स्केपुला है, इसका रीजन जो भी बनता है, जो भी मसल्स उसमें हैं, जो भी आर्टरीज वगैरह, दिस इज कॉल्ड एज स्केपुलर रीजन। We will discuss day after tomorrow the scapular region, inshallah. Pectoral region to be discussed tomorrow, inshallah, and day after tomorrow we will discuss the scapular region. Okay, so this is just like this. आप देखिए, ये आपका शोल्डर ज्वाइंट, ये क्लेविकल, स्केपुला, शोल्डर ज्वाइंट, फिर ह्यूमरस, एल्बो ज्वाइंट, रेडियस एंड अल्ना, then we have the wrist joint, carpal bones है, metacarpal और phalanges। तो अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। वैसे अपर आर्म इसलिए कहते हैं कि वैसे कॉमनली हम इसको बोलते हैं आर्म, जस्ट कॉमन इंग्लिश में हम आर्म बोलते हैं, पूरी आर्म को आर्म बोलते हैं। मगर फिर आर्म एक्चुअली एनाटॉमिकल टर्म्स में आर्म इज द पोर्शन ऑफ द अपर लिम्ब बिटवीन शोल्डर एंड द एल्बो, दिस इज आर्म। वरना जनरल इंग्लिश में तो पूरे को हम आर्म कहते हैं। और दिस इज फोर आर्म एंड देन दिस इज हैंड। ओके, यू कैन सी हियर, these are the bones and different regions, bones and different parts of the bones. Okay, now you can see this is girdle, pectoral girdle or shoulder girdle, set of bone connecting appendicular with the axial skeleton। आप देखें, ये आपका क्लेविकल एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, स्केपुला। ह्यूमरस इज कनेक्टिंग विद द स्केपुला एट द शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट का जो पार्ट ह्यूमरस के साथ मिलता है, इसको कहते हैं गिलिनोइड फोसा, इसीलिए इसको गिलिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। शोल्डर जॉइंट को गिलिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। अब स्केपुला का तो कोई कांटेक्ट एक्सियल स्केलेटन के साथ डायरेक्ट नहीं है, स्केपुला पड़ा हुआ है पीछे, मगर उसका बोन टू बोन आर्टिकुलेशन नहीं है, जॉइंट नहीं है। स्केपुला इज कनेक्टेड विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ द गर्डल, क्लेविकल उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो जॉइंट बनता है एक्रोमियोक्लेविकुलर, एक्रोमियन प्रोसेस है स्केपुला का पार्ट जो क्लेविकल के साथ मिलता है, इसलिए इसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। अब क्लेविकल जाके एक्सियल स्केलेटन के साथ मिलता है, दिस इज हियर ऑन द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ क्लेविकल मिला, यू कैन से दिस इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जॉइंट बनता है। यहां पर आप देखिए, यू कैन सी हियर अगेन, ये शोल्डर जॉइंट, स्केपुला पड़ा हुआ है, shoulder joint between the humerus and scapula. Scapula is joining the clavicle at the acromioclavicular joint, and clavicle is joining the
एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब एक ही पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, एक छोटा सा जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी इवन गर्डल भी मूव कर रही है, इस पे तो रेंज ज्यादा हो जाएगी ना। एक छोटे से जॉइंट पे पूरी लिम्ब की मूवमेंट हो तो रेंज ज्यादा हो जाएगी। These are the bones of the shoulder girdle. We have the clavicle. Clavicle is collarbone. Collarbone, it is क्लेविकल की कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, कल डिस्कस होंगी इंशाल्लाह आपके साथ, मगर मैं थोड़ी सी आपको बताता हूं। यू कैन सी हियर, ये क्लेविकल, ये स्केपुला ऐसे पड़ा हुआ है। आप देखें कि अब ह्यूमरस स्केपुला के साथ मिला हुआ है, ये शोल्डर जॉइंट बन रहा है। स्केपुला का एक्रोमन प्रोसेस क्लेविकल के साथ मिल रहा है, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। क्लेविकल बन रहा है स्टर्नम के साथ, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। और ये एक ही पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है, अपर लिम्ब की एक ही पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन विद द एक्सियल स्केलेटन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन कॉमन लिखे दो। क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन। All the long bones, ये थोड़ा जहन में रखे पॉइंट। All the long bones in the body, they are lying vertical. सारी लॉन्ग बोन्स बॉडी में वर्टिकल लाइन करती हैं। Only and only clavicle is a long bone which lies horizontally. सारी बॉडी में एक ही लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल है, बाकी सारी की सारी वर्टिकल है। लॉन्ग बोन की जब डिस्कस करेंगे, हम बोन्स पढ़ेंगे, तो उसमें दो एंड्स हैं, एक शेफ्ट है। तो क्योंकि सब लॉन्ग बोन्स जो हैं वो वर्टिकल है, तो हम एक अपर एंड है, दूसरी लोअर एंड है और बीच में शेफ्ट है। मगर क्योंकि दिस हैज द स्पेशलिटी क्लेविकल के ओनली द लॉन्ग बोन लाइज हॉरिजॉन्टली, तो इसके भी दो एंड्स, मगर अब एंड्स अपर लोअर तो नहीं होंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाएंगे। तो एक मीडियल की तरफ है तो मीडियल एंड है, ये मीडियल एंड है, और ये लेटरल की तरफ है तो लेटरल एंड है। नेचर ने इसको रखा इसीलिए कि ये इसको आपकी जो अपर लिम्ब है इसको बॉडी से दूर रखे ताकि आप आराम से मूव कर सके। ठीक है। ओनली द लॉन्ग बोन इन द बॉडी विच लाइज हॉरिजॉन्टल। और इसकी सिर्फ पेक्युलरिटीज मैं आपको बताता हूं। एंड फर्स्ट बोन in the body which start ossification. Ossification means the process of development of bone. पहले बोन या तो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, या तो कार्टिलेजिनस होते हैं। फिर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है, फिर बोन बनना शुरू हो जाता है। तो सारी बोन्स जो बॉडी में हैं, दे आर डेवलप्ड इन 8th week of intrauterine life। 8वें महीने में या कार्टिलेज है या मेम्ब्रेनस है, उनमें कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, बोन बनना शुरू हो जाती है। मगर ये बोन है, वाहिद बोन है, फर्स्ट बोन स्टार्ट ऑसिफिकेशन, पहली इसकी स्टार्ट हो जाती है। आई डोंट नो, नेचर ने इसको पहले कुछ है इसकी स्पेशलिटी जिसकी वजह से नेचर ने इसको, ये 7th week में, सारी 8th week में, ये 7th week में इसकी ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और सारी की सारी लॉन्ग बोन्स, मैं दूसरी बोन्स की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग बोन्स सारी की सारी, और लॉन्ग बोन्स दे आर ऑलवेज दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, अपर या लोअर लिम्ब। सारी की सारी लॉन्ग बोन्स दे स्टार्ट ऑसिफिकेशन फ्रॉम द कार्टिलेज। वो पहले कार्टिलेज होती है, फिर बोन बनती है। मगर वाहिद लॉन्ग बोन है बॉडी में, ये लॉन्ग बोन वाहिद है क्लेविकल जो मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होती है। ये मेम्ब्रेन से कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है और बोन्स बनना शुरू, मेम्ब्रेन से। वाहिद लॉन्ग बोन है बॉडी में, यू कैन फील थ्रू आउट। अच्छा सॉरी, एक तो पहले ये ऑसिफिकेशन इसकी स्टार्ट हो जाए पूरी बॉडी में, सिर्फ लॉन्ग बोन्स की अब बात कर रहा, सारी की सारी बॉडी की सारी की सारी बॉडी की बोन्स, अब लॉन्ग बोन्स की बात, 8वें वीक में स्टार्ट होती है उनकी ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोन, कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो सारी की सारी बॉडी में। ये वाहिद बोन है बॉडी में, लॉन्ग बोन की बात नहीं की, वाहिद बोन है पूरी बॉडी में। आपका एक्सियल स्केलेटन भी आ गया उसमें, जिसकी पहले ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है 7th week में, सारी की 8 week में, ये 7th week में। सारी की सारी, अब लॉन्ग बोन पे आता हूं, सारी की सारी लॉन्ग बोन जो अपर या लोअर लिम्ब में प्रेजेंट हैं, वो ऑसिफाई होती हैं कार्टिलेज से। पहले कार्टिलेज होती है, फिर बोन बनती है। ये वाहिद लॉन्ग बोन है। अब बोन की बात नहीं, लॉन्ग बोन की बात कर रहा हूं, जो पहले मेम्ब्रेन होती है, फिर ये बोन बनती है।
बाकी लॉन्ग बोन पहले कार्टिलेज होती है फिर बोन बनती है। सारी की सारी लॉन्ग बोन दे स्टार्ट ऑसिफिकेशन फ्रॉम वन प्राइमरी सेंटर, बाकी जो सेकेंडरी उनके मुख्तलिफ होते हैं, किसी के 4 हो, किसी के 7 हो, किसी के 2 हो, किस तरह से। ये वाहिद लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं, सबका एक प्राइमरी, लॉन्ग बोन की बात कर रहा हूँ, एक प्राइमरी, इसके 2, ठीक है। तो बहुत सी पिक्युलरिटीज है इसकी, वाहिद लॉन्ग बोन बॉडी की है, वाहिद लॉन्ग बोन, यू कैन फील थ्रू आउट योर स्किन, पूरी की पूरी इसकी लेंथ, आप स्किन को, आप अभी भी इसको टच करेंगे कॉलर बोन को, आपकी पूरी की पूरी आपको टच, आपको फील होगी आपके हैंड से कि यू आर टचिंग द क्लेविकल फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड। वाहिद लॉन्ग बोन है जिसको आप टच फील कर सकते हैं थ्रू स्किन। तो ये मुख्तलिफ पिक्युलरिटीज हैं, बहुत ही स्पेशल बोन है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन इंशाल्लाह। यू कैन सी दिस इज द क्लेविकल हियर प्रेजेंट हियर, medially forming the sternoclavicular joint, laterally forming the acromioclavicular joint, okay? And wherever it is lying, clavicle, this region we have, now in this region where this clavicle is lying, we have different muscles, we have arteries, we have veins, nerves, all these. This is called as the pectoral region. This is called as the pectoral region. So we will discuss, inshallah, in tomorrow class. And then back we have the scapula. This region is called as the scapular region. You can see this is a bone present here, and we have these muscles, they are present here. These all are collectively, we'll discuss in the scapular region. Inshallah, I will discuss with you this scapular region. And then we have this bone, the humerus, this another region between the shoulder joint and the elbow joint. The bone present is the humerus, and the region is called as the arm. You can see here, this is the arm, posterior aspect of the arm. I'm sorry, this is the anterior aspect of the arm, and this is the this one is the posterior aspect. The anterior and posterior aspects of the arm. You can see here, this is posterior aspect, this is anterior aspect of the arm. So we will discuss between shoulder and the elbow. This portion is the arm, and again in this you can see this, we have the humerus, we have reddish humerus, blue radius, and this green is the ulna and elbow joint, and then wrist joint. This between the elbow and the wrist, we have this forearm. This is, we have the radius ulna, and this portion is called as between elbow and wrist. This portion is called as forearm. You see here, this is forearm. Different muscles they are lying here. This is front of the forearm. This is these are the muscles present here in the front of the forearm, and you can see here the bones. I have put these figures of the bones here. These are the carpal bones, 8 carpal bones, they are present here. You see this, these are the 8 carpal bones. These are the phalanges. Phalanx of the thumb. Oh, sorry, these are metacarpals. Metacarpal of the thumb, our index finger, metacarpal of middle finger, metacarpal of ring finger, and this is the little finger, metacarpal. You see this in the hand, we have these carpal bones, and then we have these digates, metacarpal bones, and then the phalanges. This is the wrist joint, and we have 2 rows of carpal bones. Wrist joint is formed between the radius and ulna, and the proximal row of the carpal bones. Between proximal and distal row of carpal bones, there is intercarpal joint, and between distal row of carpal bones and metacarpal bones, we have the carpo-metacarpal joints, and between the metacarpal bones and the phalanges, we have the metacarpophalangeal joint, and then we have between the phalanges, we have the interphalangeal joint. Okay. So you see here, we have the carpal bones, we have the metacarpal bones, phalanges,
proximal phalanges. In you can see in the thumb, we have the metacarpal. These are the yellowish color are the metacarpals. Purple color, these are the carpal bones. In the thumb, we have two phalanges: proximal phalanx, green color, and red distal phalanx. But in the other digits, index, middle, ring, little, we have three phalanges. Proximal green, please beta apne mic off kar dein. Thank you. Green, middle blue, and distal red. Three phalanges in other four digits. In the thumb, we have two phalanges: proximal green and distal. In this proximal, distal, and in between, this is middle phalanx. Okay. So these are different figures of the hand. We have the muscles, we have the arteries, we have arches here, we have different, you can see these are the arches. We will discuss later on in muscles and arteries in the concerned class of this hand, the tendons and all these things. This is the dorsal aspect, posterior aspect of the hand. Retinacula, we have the arches, arterial arches, we have the nerves here. All these things, and you can see this is the joint. This is the wrist joint, the front aspect of the wrist joint, and the dorsal aspect, posterior view of this wrist joint. ये भी है, आप देखें, ये हम discuss करेंगे. And the cross section of this wrist joint, you can see these tendons. So we will discuss at the concerned time, inshallah. Okay, so this is the hand. We will discuss. So these are all these things we will discuss inshallah one by one. This is whole introduction of whole of this upper limb organization. How we can see musculoskeletal system. हमने वो discuss किया. बस on a whole एक repetition general मैं आपको एक दफा कर देता हूँ. आप देखें कि हमने सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं. आप देखें कंपोनेंट्स हर रीजन में जो डिस्कस करने हैं, वो लोकोमोटर सिस्टम क्या है हमने देखा. कंपोनेंट्स ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपर लिम्ब की, पर्पस क्या है अपर लिम्ब का, डिफरेंट सब रीजन्स अपर लिम्ब के. आप देखें कि जो जिस एनी रीजन कोई भी है, हम उसमें डिस्कस करते हैं. स्किन, उसकी कुटेनस सप्लाई, बोन्स हैं, फिर बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है जॉइंट्स में मूवमेंट होती है थ्रू मसल्स को नर्व सप्लाई चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, आर्टरीज, ड्रेनेज चाहिए, वेनस और लिम्फेटिक्स. स्पेशल स्पेसिस है उस रीजन में कोई भी. अब ये जनरली किसी भी रीजन की बात कर रहा हूँ. आगे फिर हम पर्टिकुलरली अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं. लिम्फेटिक्स है, फिर स्पेसिस, कोई स्पेशल स्पेसिस बने हुए हैं, कोई फाइब्रस एक्सटेंशन स्पेशल बनी हुई है, जैसे रेटिनाक्यूला हमने देखा यहाँ पर अपर लिम्ब में. स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, जैसे इसमें ब्रेस्ट है, ये देखिए एक मिनट, ब्रेस्ट स्पेशल, ये मैंने आपको कहा मॉडिफाइड सेट ग्लैंड है, ब्रेस्ट हम पढ़ेंगे इस पे. अब लोकोमोटर सिस्टम क्या है, जो हमें मूवमेंट कराए, जो हमें प्लेस चेंज कराए, जो हमें मूव कराए, हम आगे मूव होके कोई ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, अपर लिम्ब से मूव कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं लोअर लिम्ब से. ये लोकोमोटर सिस्टम है हमारा. नॉन लोकोमोटर क्या है कि आप कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, आप सिर्फ आपकी बॉडी मूव कर रही है, ये नॉन लोकोमोटर है. आपको थोड़ा कंपैरिजन बताया, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोकोमोटर सिस्टम, ये आपने वीडियो देखी कैसे कर रहा है. उसके बाद लोकोमोटर सिस्टम क्या है मैंने आपको बताया. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रीवियसली इसको एक्टिविटी सिस्टम कहते हैं. एक्टिविटी सारी उसी से होती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में. तो ऑर्गन सिस्टम है, जिसके बाद मस्कुलोस्केलेटल. स्केलेटल मींस कि आपके पास बोन्स हैं, आपके पास जॉइंट्स हैं, आपके पास मसल्स हैं. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद कार्टिलेजेस हैं, कनेक्टिव टिश्यू है उस पे, वो भी डिस्कस करेंगे. कार्टिलेज जॉइंट्स में जो बीच में कार्टिलेजेस ही पड़े हुए हैं ना, वरना तो बोन्स एक दूसरे पे ऊपर रबिंग करके टूट जाएं. बोन्स आपस में जुड़े एक दूसरे के साथ, कनेक्टेड है थ्रू लिगामेंट्स. फाइब्रस बेन्स हैं, फाइब्रस बेन जो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं. टेंडन्स, वो भी देखेंगे हम. बोन्स फंक्शंस हमने देखे, बोन सपोर्ट और स्टेबिलिटी देते हैं. मसल्स जो हैं, एक तो मूवमेंट कराती हैं, दूसरा बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन करके एक दूसरे प्लेस में, अपनी प्लेस पे उसको रिटेन करती हैं. जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं. कार्टिलेज जो है प्रिवेंटिंग करते हैं, बोन्स आपस में रगड़े ना, रबिंग ना हो.
बोन्स प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, बोन्स स्टोरेज, कैल्शियम फास्फोरस का करते हैं, बोन्स जो हेमेटोपोइटिक सिस्टम का रेड बोन मैरो जो आपको करता है। अपर लिम्ब की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पता, अपर लिम्ब का काम क्या है, स्किल्ड एक्टिविटीज या प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज करते हैं अपर लिम्ब के थ्रू, वो हमने देखा। सारी हैंड से होती हैं, डिजिट से होती हैं, और फिर हमने देखा कि वो कैसे होती है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट किस तरह से होती है। गर्डल जो है लोअर लिम्ब की फिट से हमने कंपेयर किया लोअर लिम्ब के साथ, अपर लिम्ब की गर्डल मूव कर रही है तो ये रेंज है, एडिशनल है। और हैंड जो है, हैंड खुद जो है वो सॉरी शोल्डर ज्वाइंट जो है, शोल्डर ज्वाइंट ज्यादा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है बनिस्बत हिप ज्वाइंट के, ये वाइड रेंज मूवमेंट हो गई। आप देखें नी लॉक हो जाता है, एल्बो लॉक नहीं हो जाता, ये एडिशन है। आप देखें लेग की बोन एक दूसरे को साथ जुड़ी तो हुई है मगर मूव नहीं हो रही है एक दूसरे पे। फोरआर्म की बोन्स मूव हो रही हैं, जुड़ी भी हुई हैं, मूव भी हो रही हैं, तो ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है। रिस्ट पे आपके जो है प्लेन जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रेंज ज्यादा है, जबकि इस पे इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं है। टार्सल जॉइंट पे, कार्पल जॉइंट्स पे है ज्यादा मूवमेंट, और आपकी डिजिट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से रीजन हमने देखे कि हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट हो रहा है फीमर से, तो फीमर तो सॉरी ह्यूमरस से, तो ह्यूमरस मींस के जो ह्यूमरस जहाँ पर पड़ा हुआ है ये आर्म है शोल्डर और एल्बो के बीच में, और फिर रेडियस अल्ना जहाँ पर पड़ा एल्बो और रिस्ट के बीच में, ये फोर आर्म रीजन है। फिर रिस्ट है हमारे पास, फिर हैंड है हमारे पास, और उसके अलावा जो गर्डल है जो सेट ज्वाइन कर रही है ह्यूमरस को अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन के साथ, दो बोन्स है हमारे पास। क्लेविकल एंटीरियरली पड़ी है जो रीजन है उसको हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन, जिसमें हमारे पास स्पेशल ग्लैंड है जिसको ब्रेस्ट कहते हैं, ब्रेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो है पोस्टीरियरली स्केपुलर रीजन, स्केपुला पड़ा हुआ है जो रीजन जिसको हम कहते हैं स्केपुलर रीजन, वो रीजन है। तो हम ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये सारे मैंने आपको दिखाया इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इसके बाद हम क्लास को एंड कर रहे हैं।